Am I audible? Hello? Yeah, Pragya, you are audible. Thank you, Premraj. So, a warm welcome to this session, which is organized by Ouroboros community. So, before we jump into the today's session, which is SDLC, I will introduce myself. My name is Pragya Panda, and right now I'm working on the multinational company, and that is one of the best multinational company. So before we start this session, just break the ice, right? So in this, I'm gonna ask you one simple question कि आपको सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी कौन सा लगता है सो दैट हम एक दूसरे के साथ एक फ्रेंडली नेचर शेयर कर सकें एंड यू विल एंजॉय दिस सेशन सो आई जस्ट वांट टू नो you can ping in the chat section, or if you want to unmute, you can unmute yourself and tell me which technology you love the most. ओमका, you want to add some points कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है? Sure, I'll message. Okay, great. Avinash? Great. Java? Awesome. Okay. Avinash, you have some points? Any technology you love the most? Okay, thank you for the participation. And I want energy in this whole session. आप सब साइलेंटली नहीं बैठ सकते, आपको अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी हम इस सेशन को एक मजेदार सेशन बना सकते हैं. So before I jump into the topic, we must know what is Ouroboros community is, why we are here, and what this community will give you. So Ouroboros community एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, जहां आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ सकते हैं. यहाँ जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाती है टू अचीव योर ड्रीम जॉब. Whatever you want to dream, there must be a dream company, right? So आप उस चीज को अचीव कर सकते हो. We give that guidance, and जो गाइडेंस है वो यहाँ उन लोगों से प्रोवाइड किया जाता है जो itself मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, and also in good companies. So welcome everyone here, and to know more about Ouroboros community, you have to be still connected in this session so that you will know more about Ouroboros community. So we can jump into the session now, which is SDLC. किसी को SDLC का फुल फॉर्म पता है तो दे कैन टाइप इन द चैट सेक्शन और अनम्यूट होके बता सकते हैं. बी फ्री, डोंट हेजिटेट. दिस इज द फर्स्ट रूल इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस सेशन. कोई हेजिटेशन नहीं है. इवन इफ यू वांट टू स्पीक इन हिंदी, इट इज अलाउड इन दिस प्लेटफॉर्म. आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, देयर इज नो बैरियर. So anybody knows what is the full form of SDLC? Well, आगे पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा SDLC क्या है. So, great Mithilesh, thank you so much. Awesome participation. Anybody else who want to give the full form of SDLC? Yeah, it is right in front of you, even though, fine. So it is a software development life cycle, and this session will be hosted by Ashutosh and me. So before I jump into this topic, let me ask you one simple question, and promise me you will reply. This time you can't be silent, okay? So आप में से किसी ने भी कोई ग्रुप एक्टिविटी अपने स्कूल डेज में परफॉर्म करी है? एनी ग्रुप एक्टिविटी, लाइक हम सोशल साइंस एग्जीबिशन होता है, साइंस एग्जीबिशन होता है, एनी ग्रुप एक्टिविटी किसी ने पार्टिसिपेट करी हो? एटलीस्ट टाइप यस और नो. Yes. ओके, ऑसम. इसे कहते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड ऐसे ही आंसर चाहिए. डोंट से मच थिंग, बट एटलीस्ट से यस, नो. Okay, we got a one yes. Okay, that is a great thing to start with.
So yes, some of the people have undergone the group activities. So कोई अपना जॉब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो ग्रुप एक्टिविटी का, जब आप कोई भी ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो क्या किया है उस ग्रुप एक्टिविटी में? एनीबडी वांट्स टू शेयर द एक्सपीरियंस? ओके, सो आई विल आस्क आशुतोष, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसे ग्रुप एक्टिविटी का इन योर स्कूल डेज, तो वी ऑल वांट टू हियर दैट. Hello everyone, am I audible? Yeah, Ashutosh. Hello guys, my name is Ashutosh, as told by Pragya. I work in a multinational company as a software developer, and over here, Pragya asked me to tell one of my experience working in a group project or something like that, right? So yeah, I have one experience, not one. I have many experiences, guys. Okay, so I will share one with you. Okay, जब मैं स्कूल में था तो मुझे एक साइंस एग्जीबिशन के लिए पार्टिसिपेट करने में टीचर ने कहा, राइट. Then after I formed a group with few of my friends. One was Priyanshu, Kisle and Varun and all those peoples, and we decided a day, okay, that we will meet up at Priyanshu's home and we will discuss what we have to build. Okay, so when we met together, हमने क्या करा, हम फालतू की बातें करते रहे, ठीक है, और फिर हम गेम खेल रहे थे, कुछ खा रहे थे, ठीक है, यही सब करते रहे. फिर हमें जब 1-2 घंटे रियलाइज हुआ कि अरे हमें तो कुछ डिस्कस भी करना था. ओके, फिर हमने वो चीज़ें डिस्कस करी और हमने डिसाइड करा कि हम एक स्मार्ट सिटी पे मॉडल बिल्ड करेंगे. ओके, फिर मॉडल के लिए हमने सोचा कि चीज़ों का क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, हम किस पे कैसे बिल्ड करना चाहेंगे. पीपीटी से सॉरी पीओपी से बिल्ड करना चाहिए, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से, वुड से, थर्माकोल से, क्ले एंड ऑल दोज थिंग्स. किससे बिल्ड करना चाहेंगे, क्या क्या उसमें फीचर हम ऐड करना चाहेंगे, एंड कितना हमें पैसा लगेगा, रिसोर्सेज क्या क्या लगेंगे, टाइम कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है. फिर जब ने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली तो फिर उसके बाद जब टाइम आया हमें ये चीज़ बिल्ड करने का, तो जब हम बिल्ड कर रहे थे तो ना क्या हुआ, हमें बहुत सारी चीज़ें भूल गए कि हमें करना क्या क्या था, ठीक है, और कैसे कैसे करना था. और ऐसा क्यों हुआ पता है, अब मैं ये बातें रियलाइज़ करता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे तो व्हाट हैपेंड दैट वी डिडंट रोट एनीथिंग, वी डिडंट specified or write any details that yeah these are the things or these are crux points that we are going to do in later stage. Okay, so this is the thing that I realized over there. Okay, so this was my experience when I was when I did a group project. So does this answer your question, Pragya? Yeah. Thank you, Ashutosh. So before we move on, there's a link which is coming to your chat section. So आप एक attendance form है, just एक छोटा सा फॉर्म होगा एंड प्लीज उस फॉर्म को भर दीजिए ताकि हमें पता चले कि आप में से कितने लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं. ऑफ कोर्स एवरीवन इज एंजॉयिंग दिस सेशन, सो this you can say it's a love of token from your side to us. You can please fill that attendance form. So thank you Ashutosh for your experience and we love to hear that आपने कैसे प्लान किया. So जब भी हम कोई भी चीज़ डिसाइड करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ फॉर्म मतलब बनाना होता है, इवन हम कोई सपोज वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई खाना बनाना चाहते हैं, वी नीड अ प्लान, वी नीड अ स्ट्रैटेजी, राइट. सो जब इतने बड़े जब कुछ छोटे छोटे काम के लिए हमें इतना प्लान बनाना पड़ता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है. सो दिस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, these multinational companies, these IT companies, how they are handling this large project. Microsoft है, Google है, उसमें इतने सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं. मॉड्यूल्स क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट कह सकते हैं आप, ठीक है. जैसे अगर हम आज बना रहे हैं कि हमें आज नॉर्थ इंडियन थाली बनानी है, ठीक है, एंड तो उसमें हर एक जैसे दाल हो गया, राइस हो गया, चपाती हो गई, तो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स हो जाते हैं. इन आईटी इंडस्ट्री अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो लॉग इन पेज हो गया एंड क्या कहते हैं साइन आउट पेज हो गया, आफ्टर लॉग इन जो पेज आएगा, ठीक है, विच यू ऑल्सो सी इन फेसबुक विच इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक है. तो ये सब चीजें बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम एकदम से बनाने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है. अगर हम बनाने बैठे तो haphazardly it will be go wrong. So उसके लिए हमें एक प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोवाइड करता है, ठीक है. So आशुतोष, कैन यू टेल अस दैट व्हाई वी नीड, बिकॉज कोई भी चीज शुरू करने से पहले, अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें
क्या ऐसी जरूरत होगी कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चाहिए? ओके, so why we need software development life cycle and what is the purpose of this? So Ashutosh, can you tell us about this more? Yeah, of course, I will be more than happy to tell you guys all about why. Not first, I will not explain first that what is software development life cycle. Okay guys, I will first say like why should we study this or why should we know about this. Okay, so why SDLC is used? Anyone wants to like share or like tell why SDLC is used? And one more like apology from my side that I will not be able to see your comment. So if it will be better if you guys can unmute yourself, or if not, then my team will like convey or Pragya will convey that what have you responded in the comment section. So I will like wait for 3 seconds. Guys, can you tell why we need SDLC? Okay, so no worries, I am here to tell you why we need SDLC. So see what happens now in any organization or in any company, in any business. जब client हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट लेके आते हैं, ठीक है, लाइक देयर विल बी अ क्लाइंट जो कि आपसे कहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से कि हमें ये एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें ये एक प्रोडक्ट चाहिए. ओके, सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपका गोल क्या होना चाहिए कि आप उन्हें उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, आप उन्हें जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करें वो एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो. जाहिर सी बात है जब हम रेशियो के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे जो हमने प्रोडक्ट बिल्ड करा है वो कम कॉस्ट पर बिल्ड हो, राइट. वी विल नॉट गो लाइक वी विल expand the money extravagantly. Okay, so also like we will also want that हमारे क्लाइंट को उनका प्रोडक्ट टाइमली मिले, राइट. ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि लाइक हमें हमारे क्लाइंट ने हमें कहा कि उन्हें प्रोडक्ट 6 मंथ के अंदर चाहिए और हम 1 साल बाद जाके उन्हें कह रहे हैं कि या योर प्रोडक्ट इज रेडी सर. That will not be like an acceptable thing to do, right. Moreover, what SDLC like enables us to do that, suppose that you are building something, okay, and you got an urgent requirement to go somewhere else, okay, and you left that project in between. Okay, so जब दूसरा आदमी आएगा तो वो उस चीज को कैसे कंटिन्यू करेगा अगर आपने उस चीज को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नहीं करा है तो, राइट. इट इज नॉट लाइक कि आपने कोई कोड देखा या आपने कोई भी चीज देखा जो भी आप बिल्ड कर रहे हो, कोई दूसरा बंदा आके उसमें उस चीज को कंटिन्यू कर सकता है बिना किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के, राइट. सो ये सारी चीजें कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से बिल्ड करेंगे, किस तरह से इंश्योर करेंगे कि वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का हो, किस तरह से इंश्योर करेंगे कि वो काफ़ी कम एक्सपेंडिचर पे बिल्ड हो, किस तरह से इंश्योर करेंगे कि हमें कितने रिसोर्सेज का नीड पड़ेगा. रिसोर्सेज बाई आई मीन दैट ऑल द डेवलपर एंड टेस्टर दैट वी नीड. एंड ये सारी चीज़ें कि हम इस प्रोजेक्ट को मैनेज कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते या सीखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में. ओके गाइज, is it clear like why we need SDLC in any organization? Any yeses or no? Yeah, Pragya, kindly tell me if anyone responds yes or no in the chat section. Yeah, definitely. Please guys, आप लोग yes या no टाइप कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही टाइप करना है. और नहीं है तो if you have any doubt you can ask us because that's why we are here. Like right now. यशश्री, आपको समझ में आया? Thank you. Okay, yes, there is some yeses we got, so yeah, we can continue. Oh, it pleases me a lot that you guys are understanding whatever I am telling. Okay, so moving forward, as of now we discuss why we need SDLC. Now we will discuss what is SDLC. Okay guys, so moving forward we have to discuss this, what is SDLC. Now again, let me ask you guys, like as I already told you why we need SDLC, can you guys now tell what is SDLC? Even if not, that's not a problem. That is why like after this session you will definitely be able to tell what and why is SDLC used in any organization. So don't worry, I am here to tell all about this. So earlier, like
You guys can also read the things written over here, but anyways, I will like tell you earlier what happened, that there were like large organization also, okay, then few small organization emerged, okay, then the economist or the business person, they thought that how we can help these small organization to develop or to grow, okay, so then they like came up with an idea, that system development life cycle. In that they like explained, or like they wrote down all the things that how we can help any a small organization to grow, okay. So like when I will like go with what is SDLC, then according to Wikipedia, the simple definition of SDLC is: in software engineering, a software development process is the process of dividing software development work into distinct phases to improve design, product management, and project management. It is also known as software development life cycle. So by this definition, what we understood, that in SDLC there are certain phases, right? Like how we will design our product, what are the requirement that we will need, how we will manage those things, and even after development, how we will maintain those things, right? So all these things that is governed in SDLC are divided into certain phases. Okay, guys, don't worry. In like moving forward, we will tell you about all the phases of SDLC. So as of now, like what is SDLC? Is it clear? Like SDLC में, like let me switch to the Hindi. SDLC में हम क्या करते हैं? हम एक पैराडिम डिफाइन करते हैं, ओके, जिसमें कि हम ये बताते हैं कि हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोडक्ट को हम जब बिल्ड कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, तो उन्हें हम किस तरह से बिल्ड करेंगे, लाइक हमारे इनिशियल स्टेजेस क्या होने चाहिए, कि हम किस तरह से क्या क्या चीज़ें रिक्वायर करेंगे, किस तरह से चीज़ों को प्लान आउट करेंगे, ये सारे फेजेस हम SDLC में डिफाइन करते हैं. ओके गाइज, is it clear like what is SDLC? And like because like if you guys, if all of you guys have to say yes or no, because we can't proceed further if you don't understand right now what is SDLC. So kindly to respond yes or no that you guys understand. Yeah, we got one response from Magnesh. Okay, what about others, guys? At least tell yes or no, because before moving forward, I want to ensure that you guys are understood what is SDLC. अनुजा, क्या आपको समझ में आया what is SDLC? You just need to type yes. उतना हमारे लिए काफी है आगे बढ़ने के लिए. Yes or no, especially ऐसा नहीं है कि सिर्फ yes लिख दिया and you didn't understand. Yeah, like if you have any doubt, you can definitely say no that I am not understanding. अगर पूछना है, you can unmute or you can type the question in the chat section. And also, please fill the attendance form. Okay, we got enough yeses, I think. Yeah. Yeah, you can move on. Yeah, moving forward, guys, as of now I told you why SDLC is used in any organization and what is SDLC. Yeah, I think that you guys might be thinking that yeah, the why and what phase are like similar, but no, there is a difference. Of course there is a difference in why we learned that why we specifically need SDLC in, and in what phase we learned that what is this, okay, what is this. By this I mean SDLC. So moving forward, as I told that there are certain phases or stages in any SDLC process, okay. So moving forward, I will like jump into SDLC phases, and for you guys to explain, like to tell you that what are the stages or the phases in SDLC, I will like invite Pragya to start with this. Thank you, Ashutosh. So before we proceed, कि क्या क्या ऐसे phases होते हैं, हमें पता चल गया कि हमें किस लिए यूज करना चाहिए SDLC, क्या है SDLC. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि with the help of what phases या फिर ऐसे कौन से प्लान या स्ट्रेटेजीज होते हैं जिसको हम फॉलो करके SDLC को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ब्यूटीफुली बाहर निकल कर आए, बिकॉज अल्टीमेटली वही हमारा टारगेट है. So before I proceed,
ये सिंपल क्वेश्चन है, एटलीस्ट इसका जवाब तो मैं चाहती हूँ सब अनम्यूट करके दें, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ऐसा होता है तो। ओके, सो बताओ कि सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? सबका फेवरेट फूड कौन सा है? लाइक अगर आप मेरे से पूछो तो मुझे शाही पनीर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। एंड व्हाट अबाउट यू गाइस? अनुजा, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? You can unmute or you can type. Sovam, what is your favorite food? चिकन और बिरयानी बोल सकते हो। अरे वाह, सही है, awesome यार। नाइस ब्रो, नाइस। इस जवाब ने तो दिल जीत लिया। यशस्वी, you want to say something? आपका फेवरेट फूड क्या है? नयना, आपका फेवरेट फूड? गाइस, रिस्पॉन्स। मगनेश, बादशाह, ऑसम, वेलकम टू द सेशन। आपका फेवरेट फूड क्या है? अभी तक बस बिरयानी फेवरेट है, बाकियों को कुछ फेवरेट फूड है ही नहीं। I think Mithilesh specified one very spicy dish, that is chole kulche. अरे that's a Punjabi munda. Got it. Awesome, delicious. Thank you, Premraj. ओके, अभी तक हमारे पास छोले भटूरे है, बिरयानी है, शाही पनीर, और किसी को कुछ पसंद ही नहीं है। As the discussion about food is going on, so like I will also like to add that my favorite food is also Shahi Paneer, and yeah, others response like you can type this in the chat, guys, like what is your favorite food? सब हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं। या सभी अभी घर पे रह के लाइक डाइटिंग करने का सोच रहे हैं। हेल्दी चने चबा रहा हूँ गाइस, इस लॉकडाउन में अनहेल्दी हो गए सब। अनहेल्दी होने के बावजूद भी जवाब नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो तो है, एक्सपेरिमेंट्स ज्यादा हो रहे हैं लॉकडाउन में। चलो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ बिरयानी। ठीक है, तो जब हम बिरयानी बनाते हैं तो हम या तो एक दिन पहले डिसाइड करेंगे या उससे। वेलकम ऋतिका, रहना, आपका फेवरेट फूड क्या है? सेशन कंटिन्यू करने से पहले हम सबका फेवरेट फूड पूछ रहे हैं ताकि जोमेटो से डिलीवर कर सके। और अटेंडेंस भी भर दीजिए ताकि इजीली आप तक पहुंच जाए। कविता, वेलकम टू द सेशन। आपका फेवरेट फूड क्या है? टाइप कर दो, डोंट नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन टाइप इट। चलो ठीक है, वी विल गो विद बिरयानी बिकॉज बहुत ऑसम डिश होती है। उसको प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है, एंड इट शुड बी परफेक्ट, नहीं तो टेस्ट इधर का उधर हो सकता है। ठीक है, तो SDLC का जो फेज नंबर 1 होता है, या फिर जब हम खाना भी बना रहे हैं, ठीक है, या कोई वेबसाइट बना रहे हैं, इवन हम अगर जैसे टेस्ला अपनी कार बनाती है या कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कुछ भी डिजाइन करता है, तो उससे पहले तो कुछ होता होगा, व्हाट वी नीड। हम कोई ट्रिप करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग। करेक्ट, ऑसम। सो हमारा पहला फेज हो जाता है प्लानिंग, जहां पे लोगों की मीटिंग होती है, देयर दे डिसाइड कि हमें अपना बजट बनाना है। मनाली घूमने जाते हैं तो हम बजट बनाते हैं कि कितना बजट बनाना है, कौन कौन आएगा, कौन कौन से फ्रेंड्स आ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा और कैसे ट्रैवल करना है, राइट। सो और अगर हम बिरयानी की बात करते हैं तो उसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट बनेगा,
खरीदना पड़ेगा ऑफ कोर्स, एंड कौन सा यूट्यूब चैनल देखें बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू कुक बिरयानी, सो कौन सा सही रहेगा, कविता's किचन या निशा मधुलिका. ओके, सो इन दिस वे हम प्लान करते हैं कि क्या क्या चाहिए. तो सिमिलरली इन IT इंडस्ट्री एंड ऑल द बिग ऑर्गेनाइजेशन, दे फॉलो this planning rule first in the SDLC. So in this they discuss about the budget, staff and timelines. Okay, so they decide how much time it take to complete that particular module or that particular project. We cannot say randomly that we can complete it in 2 years because that is a very big time. So हम एक छोटा सा टाइम फ्रेम डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने या 3 महीने, जैसा उस डिस्कशन में होता है. बजट डिसाइड होता है कि कितना पैसा खर्च होगा उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और स्टाफ में ये डिसाइड होता है कि कितने डेवलपर की टीम चाहिए, कितने टेस्टर की टीम चाहिए उसको टेस्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल सोवम मिन ने बिरयानी बना दी, उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टर तो चाहिए, और सोवम एक डेवलपर है, उसने बिरयानी बना दिया. तो उस हिसाब से हमें सिमिलरली प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम ये डिसाइड करना पड़ता है कितने टेस्टर चाहिए, कितने डेवलपर्स चाहिए, डिप्लॉयमेंट कब होना चाहिए, और अगर बग्स आते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग तो ड्यूरेशन बढ़ जाता है, बट उसको हम कंसिडर नहीं करते हुए एक अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन डिसाइड करते हैं. एंड ये ऑल दिस एक्टिविटी इज हैपन ड्यूरिंग प्लानिंग. ओके, आफ्टर डिसाइडिंग कि बिरयानी में कौन से मसाले डलने हैं, और वेबसाइट्स में कौन कौन से लॉगिन पेजेस बनाने हैं, कौन सा इंट्रोडक्शन पेज बनाना है, आफ्टर डूइंग दिस प्लानिंग, कंप्लीट प्लानिंग, हम नेक्स्ट पर जाएंगे विच इज एनालिसिस. आशुतोष को जैसे पसंद है शाही पनीर एंड ऑल दैट थिंग, तो आप बताइए कि हाउ यू एनालाइज आफ्टर प्लानिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, और आफ्टर यू डिसाइड दैट इफ यू आर गोना create a website or application. So after that हमें हम कैसे एनालिसिस करते हैं उस पूरे प्रोसेस को कि आगे कैसे कंटिन्यू किया जाए. एंड प्लीज फिल द अटेंडेंस फॉर्म जो भी यहाँ पे है, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी. एंड या आशुतोष, यू कैन टेल अस व्हाई एनालिसिस इज डन. Yeah, so any like guesses after the planning that why we are going into the analysis phase? Like as Pragya told you guys that what are the things that we do in planning phase, right? We gather all the requirements, like we discuss, we brainstorm and all those things with our stakeholders, with our manager, all the developer team, tester team, all those people organize together and like discuss or brainstorm all the requirements and planning phase. Can you guys now tell what are the things that we are gonna do in analysis? ओके, देयर इज सिंपल थिंग. एनालिसिस फेज में हम क्या करते हैं ना कि हमने अभी तक जितनी चीज़ें प्लान आउट करी, ओके, प्लानिंग फेज में हमने जितनी चीज़ें प्लान आउट करी, एक सिंपल बात है, हम उसे राइट डाउन करते हैं. लाइक अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस याद होगा बचपन का, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि लाइक जब मैं बचपन में ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहा था, तो हमने जब चीज़ें डिस्कस करी और फिर हम जब उस चीज़ों पे काम करने लगे, तो हमने वो चीज़ें लिखी ही नहीं थी, तो हम बहुत सारी बातें भूल गए. ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस फेज में एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं. ओके, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, इन शॉर्ट SRS डॉक्यूमेंट. ओके गाइस, उस डॉक्यूमेंट में हम ये सारी चीज़ें, जितने भी चीज़ें हमने प्लानिंग फेज में ब्रेनस्टॉर्म करी, वो सारी चीज़ें लिखते हैं. ओके, मोरओवर इन एनालिसिस फेज वी आल्सो एनालाइज कि क्या हम जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिकली फीजिबल है या नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक वो ऐसा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिससे हमारे कंपनी को नुकसान हो, लाइक जो उसका एक्सपेंडिचर हो वो हमारे लाइक जो अफोर्ड कर सकते हैं या जो हमारा GDP है उससे हाई हो जाए. मोर ओवर वी हैव ऑल्सो लाइक टू कवर द लीगल प्रोसीजर. ओके, वी कांट यूज एनी लाइसेंस प्रोडक्ट विदाउट परचेजिंग द लाइसेंस, राइट? So all these things, like moreover all the other thing that we do in analysis is that हम ये भी decide करते हैं कि हमारे जो technical staff रहेंगे वो किस level के रहने चाहिए, like what are the like what would be the requirement of the software developer. Okay, moreover in analysis phase जो हमारा software requirement specification document है, उसमें हम ये चीज़ें भी write down करेंगे कि हमारा जो schedule रहेगा कि ये पूरा process कितना time लेना चाहिए. So in simple point, एनालिसिस फेज में हम ये सारी चीज़ें जो भी हमने प्लानिंग फेज में डिस्कस करी, ओके, उसे हम एक ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं, नॉट इन मच ऑर्गेनाइज वे. ओके,
बट जितनी ही बातें हमने डिस्कस करी वो सारी बात को हम SRS डॉक्यूमेंट में लिखते हैं. ओके, इज इट क्लियर गाइज कि एनालिसिस फेज में हम क्या कर रहे हैं? बाय हम आई मीन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द बिजनेस पीपल. इज इट क्लियर गाइज? मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ. एक या श्योर श्योर. नाउअडेज ऑर्गेनाइजेशन जो है एनालिसिस पर्पस के लिए एजाइल स्क्रमिंग मॉडल यूज करता है, जिसमें मतलब कि एज ए नॉर्मल पर्सन यूज कर सकते हैं. ट्रेलो एक एग्जांपल है, तो अगर ट्रेलो भी जाओगे तो वहां से भी हम एनालिसिस करते हैं. तो मोस्टली एनालिसिस फेज में बस ये देखा जाता है कि क्या बनाना है हमको, क्या एनालिसिस करना है. एक पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स होता है, उसके बाद एज ए पर्टिकुलर ड्यूरेशन, जैसे कि हो सकता है कि एक एक दिन के बाद भी हो सकता है, मीटिंग्स टीम मीटिंग्स होते हैं. उसके बाद एनालिसिस करते हैं कि वो पर्टिकुलर चेक पॉइंट्स हम लोग को फुलफिल हुआ है कि नहीं. ये भी होता है एनालिसिस फेजेस, क्योंकि जो मतलब कि चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग पहले से ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में. तो वो आजकल बहुत सारे एजाइल स्क्रमिंग मॉडल में यूज किया जाता है, जैसे कि ट्रेलो भी होता है. ट्रेलो एग्जांपल है क्या इसका, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं. मतलब इन प्रोग्रेस क्या है, क्या करना है और क्या अचीव हुआ है हम लोग के सामने. Of course, like really valuable information. May I know your sweet name, bro? माय नेम इज सोवम प्रधान. Please repeat again. माय नेम इज सोवम. इज आई एम ऑडिबल? Yeah, sure, bro. That's a nice name, bro. Yeah. All the things that you told at the checkpoints and using of Trello, you already told, bro, that you yourself told that this is a methodology, right? And we haven't been like अभी हम उस फेज में गए ही नहीं है जहाँ पे हम तुम्हें ये बताए कि SDLC में क्या क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं. So like all the thing that you told is absolutely correct, okay, but have some patience, we will reach there, don't worry about that. Right now हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो SDLC के फेजेस हैं. ये एक जनरलाइज टर्म है SDLC. ऑफ कोर्स SDLC में और भी ढेर सारे मेथोडोलॉजी है, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, एजाइल हो गया, डेवऑप्स हो गया, that you told about agile, right? So don't worry about that, we will reach that part also. And yeah, your point is absolutely correct, bro, don't worry about that. And really thanks a lot for like bringing this up to the light for all our audiences. Okay, so moving forward. Yeah, sorry. Okay, moving forward, after analysis we have our next step or phase, that is design. Okay, so this is also a very simple step. As I already told, I'm audible guys, right? Yeah, Ashutosh, you're audible. Okay, sure. In design phase what we do that in earlier phase हमने अपने एनालिसिस फेज में क्या करा, एक SRS डॉक्यूमेंट तैयार करा था, राइट? और मैंने ये भी बोला कि हमने प्लानिंग फेजेस में जितनी चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म करके प्लान करी थी हमने उसे डॉक्यूमेंट करा SRS डॉक्यूमेंट में. बट उसमें ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि फिल्टर्ड नहीं है. लाइक उसमें से बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्प्लीमेंट करना फीजिबल नहीं है, उसका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो लीगली पॉसिबल नहीं है, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन है जो कि फुलफिल ही नहीं किए जा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों को हमें जाहिर सी बात है बाहर करना होगा, राइट? तो हम डिज़ाइन फेज में अपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को हम नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट. अब जब हमने डिज़ाइन फेज में अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट तैयार किया, ठीक है, इसके बाद अब जितने भी फेजेस हैं, ओके, उस सारे फेजेस में हम अब इस सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को ही यूज़ करेंगे. Okay, in software design document we write all the things that how our user interface will look. क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे जो एंड यूज़र हैं उनके लिए वो यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहे, राइट? इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लाइक या हेयर यू हैव टू क्लिक ऑन यस, हेयर यू हैव टू क्लिक ऑन नो एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड यूज़र इंटरफेस शुड बी लाइक वेल रीडेबल. ओके, moreover the interface that the user are facing, all those things, the design aspect, okay, that design aspect should be perfect. All these things are like documented in the design phase, okay? And remember this point, in analysis phase we build a SRS document, right? And in design phase we will organize that document and name it as software design document. So these are the things that we are planning in design phase. Okay guys, for the next phase I will like to call up Pragya
अभी तक हमने जितना भी पढ़ा का कौन बताएगा? यू कैन अनम्यूट। अभी तक हमने कितने कितने फेजेस पढ़ चुके हैं? Anybody want to say कि अभी हमने कितने फेजेस पढ़ चुके हैं? आई थिंक बच्चों में थोड़ा फियर है, डर है मन में कि वो कुछ गलत ना बोल दे, सो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कोई नहीं। Is that so? Like you guys are like fearing my voice, really? Like हाँ, बहुत डरावना है, भूत जैसा। like ओके, दिस अ पार्ट ऑफ फन। सो तो हमने सबसे पहले प्लानिंग पढ़ा, उसके बाद हमने एनालिसिस किया, अब हमने डिजाइन कर लिया। डिजाइन में हमने क्या डिजाइन किया है? सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हमें जो भी जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, वो चीजें हमने वहां पे डिजाइन कर ली। अब जो बिरयानी बना रहा था, या फिर हम डेवलप करेंगे एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, या हमें कोई टारगेट दिया हो जिसे हमें अचीव करना है विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब हम उसमें जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट बनाया गया है, अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फेज आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे ब्यूटीफुल सा डायग्राम आप देख रहे हो, एक प्यारे सा पिक्चर है जहाँ पे लोग उन्हें जो भी सीखा वो इम्प्लीमेंट करके पजल्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने डिजाइन फेज में जो भी चीज डिसाइड करी है वो एक पजल के जैसे है, अनटिल अनलेस हम उसको एक साथ ना जोड़ दें तो एक कंप्लीट पिक्चर बनकर नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ डेवलपर क्या करता है, वो जो भी चीजें डिसाइड करी गई हैं कि आपको एक लॉगिन पेज बनाना है, उसमें बटन होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए, या रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है, या फिर आपको कार्ड सेक्शन बनाना है, जो भी चीजें डिसाइड हुआ है वो हम इस इम्प्लीमेंटेशन फेज में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो स्पेशली डेवलपर इम्प्लीमेंट करेगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इम्प्लीमेंटेशन फेज हमारा डेवलपमेंट हो गया, डेवलपर ने डेवलप कर दिया। अब सही है कि गलत है, कौन चेक करेगा? खाना बना दिया, चलो छोड़ो, कौन चेक करेगा कोड को, हम बाद में देखेंगे। मम्मी एज अ टीम लीडर। अरे ऑसम ऑसम आंसर, थैंक यू। सो अब मम्मी टेस्ट करके बताएंगी कैसा बना है, नमक कम ज्यादा, मिर्ची कम ज्यादा, जो भी है। सिमिलरली जो हमारे इंडस्ट्री में टेस्टर्स होते हैं, जो टेस्ट करके बताते हैं कि डेवलपर ने जो भी चीजें डिजाइन किया है क्या वो सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट के हिसाब से है या नहीं है। अगर थोड़ी सी भी चूक हुई हो वो एज अ डिफेक्ट कहलाती है एंड उसको करेक्ट करना पड़ता है। अनटिल ये करेक्शन ना हो, ठीक है, वो दूसरे फेज में नहीं जाएगी, जो कि टेस्टिंग के बाद वाला फेज है। सो आशुतोष यू कैन, या थैंक यू। तो मस्त गाना सुनता हुआ टेस्टर टेस्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट दैट इजी जॉब, ठीक है। सो टेस्टिंग करता है, बताता है कि कोड में क्या एरर है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, सजेशंस नहीं दे सकता है ऑफ कोर्स। 100% बग फ्री प्रोजेक्ट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी चीज 100% हो, ठीक है। वी कैन लीड टू 100%, it may be 99.9999%, so many nines, infinite nines, but it can't be 100%। जो हम टेस्ट करते हैं वो कभी भी 100% नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, तब तक हम उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि खाना हम बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट हो नहीं कह सकते, बिकॉज कुछ के टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से मे बी वो अच्छा ना हो, कुछ के टेस्ट बर्ड के हिसाब से बहुत ऑसम हो, और कुछ के टेस्ट बर्ड के हिसाब से ऑन एन एवरेज हो। तो ये तो हो गया उसके सिनेरियो के हिसाब से, बट वी विल कम बैक टू दिस रियलिटी सिनेरियो विच इज इन IT इंडस्ट्री। सो हेयर वी कांट बी मेक एनीथिंग 100% प्रूफ, बना नहीं सकते, बन सकता है बट इट मे, जैसे प्रोबेबिलिटी होता है, इट इज बिटवीन 0 to 1, हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। कभी भी देर इज नो प्रोबेबिलिटी कि 1% हो। जैसे सूरज उगने की प्रोबेबिलिटी कितनी % है, लेकिन कल को कुछ कॉस्मिक इफेक्ट हो गया, बिग बैंग थ्योरी हैपन होगी, या कुछ हो गया, तो you can't predict anything. Similarly, the probability will leads to 1, like 99.99%. Similarly, testing is up to that.
तो इसमें जो क्यूए होता है, जो क्वालिटी एनालिसिस करते हैं कि जिस 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 तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए उस तरीके से डिज़ाइन हुआ है, या डेटाबेस है उसका भी जो कंस्ट्रक्शन है, एक आर्किटेक्चर बनाया जाता है, क्या उसी चीज़ को फॉलो किया गया है, डेवलपर ने उसी चीज़ को फॉलो किया है। तो इस तरीके से हमने जो प्लानिंग में डिसाइड किए थे कि 4 टेस्टर्स यूज़ होंगे या 2 टेस्टर्स यूज़ होंगे इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए, तो वो टेस्ट होता है जिससे हमें एक अच्छा एप्लीकेशन बना सके। After doing this testing, I would like to deploy my stage to Asutosh to deploy this project. Yeah, that is a clever use of like words. The next stage or the phase is deployment. You can see this guy over here that is going to like deliver something, right? Let's suppose that is like delivering your Amazon product, okay, or your pizza. Ashutosh, Yeah, bro. sorry to interrupt, but Sovam wants to say something. Like Yeah, he yeah, Shivam. mentioned one thing in the chat window. Yeah, please, can you tell me what that is? We are sorry that हम देख नहीं पाए, but yeah, of course we will answer. Yep, you are correct. यूज करते हैं Selenium for testing. बहुत सारे tools हैं जो कि nowadays यूज किया जाता है testing purpose. Yeah, right now I can't see that who like wrote Selenium. Really great response, bro. Like, yeah, Selenium is used for testing and it works on the Java framework. So that's really a nice addition. Thanks a lot, bro. And I must say, I love this active participation from all of you, even who are not typing, but they are listening, and that is a great thing for us. And thank you for this participation. Yeah, now we can deploy our module or project. Yeah, see, let's suppose Continue. that ये हमारा पिज्जा डिलीवरी गाई है, ओके, या हमारा अमेजोन का प्रोडक्ट लेके जा रहा है, या हमारे पास आ रहा है, सॉरी, जा नहीं रहा है, आ रहा है, ओके। सो लाइक इन्होंने लाइक पिज्ज़ा लाइक बनाया होगा, राइट, और जाहिर सी बात है वो टेस्टेड होगा कि लाइक उसका टेस्ट एंड एवरीथिंग सब सही है या नहीं, तो ये उसे डिलीवर करने जा रहा है, राइट। सेम थिंग आईटी इंडस्ट्री में हो रहा है। जब आपके क्लाइंट ने आपको कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करने कहा, राइट, तो आपने लाइक प्लान करा, एनालाइज करा, डिज़ाइन करा, इम्प्लीमेंट करा, आपके डेवलपर्स ने उसे टेस्ट भी कर लिया, टेस्टर्स ने, कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट जो जो रिक्वायरमेंट है उस पर सही बना है, राइट। बट जब हम डिप्लॉय करने जाएंगे तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने क्लाइंट को वो सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट जो है वो उन्हें डिलीवर करे, राइट। और साथ ही साथ अभी तक हमने जितने भी काम करे, ठीक है, ये कहाँ हो रहे थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट पे, ओके। तो जब हम अपने क्लाइंट को उनका ये प्रोजेक्ट जब देने जाएंगे तो हमें वहाँ पर उनके इन्वायरमेंट में, हमारे क्लाइंट इन्वायरमेंट में जो कि यूज़र इन्वायरमेंट होता है, वहाँ भी टेस्ट करना होता है, ओके। This comes under when you will guys like study about all these things in depth, you will study this in UAT, that is user acceptance testing, okay. In that there are two terms, you guys might be familiar with that term, alpha and beta testing. Those people who like play games, you guys might be able to understand me that what is beta testing, okay. I will not go that much deep right now. So coming back to deployment, what is happening over here is that our product is getting deployed to the user or the client side, okay, and also we are going to test our product, our build project on to the user environment, and if हमारा प्रोडक्ट उनकी इन्वायरमेंट में अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ें जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे फुलफिल कर रहा है, तो हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि या हमारे ये जो प्रोजेक्ट है, हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट में अब स्प्रेड करने के लिए बन चुका है, ओके। सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग इन अवर डिप्लॉयमेंट फेज। अंडरस्टूड गाइज? Yeah, one more point I want to mention, Ashutosh ji. Yeah. Like, it will be helpful if you mention the deployment server names, like where we can deploy their things and all. Like, it will be helpful for understanding the things. Like as first I thought about that, not going that much deep, but if it is a like, what can I say, a request from you guys, then of course we can like go into that much depth. Wait a second. Yeah, we deploy our product into the like the databases of our user or the client that have requested our
like the project to be built. So this is the thing that we do into the deployment stage. Does this answer your question, Premraj? I think you are Premraj, right? I remember your voice. Yeah, Sashutosh, yeah. And Soham also gives the answer like we can use the cloud platforms for deployment like AWS, Azure, GCP Okay, like Google. I only told about the databases, right? My bad, guys. Like, yeah, of course, if the as the technology is progressing day to day, अभी के हिसाब से जितने भी हमारे प्रोजेक्ट आते हैं, जितने भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट आते हैं, वो चाहते हैं कि उनके सारे प्रोजेक्ट क्लाउड सर्विसेज पे स्टोर हो, क्योंकि उसके भी बहुत 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 सारे फायदे हैं। वो हमारे जो प्रीवियस मेथोडोलॉजी था, प्रीवियस जब हम डेटा बैकअप करते थे या अपलोड करते थे तो हम रेड टेक्नोलॉजी यूज करते थे। रेड, यू गाइज माइट understand, leave that part. Right now we do all those things in our cloud services, AWS and all those things. So thanks for that input, bro, whoever told about the cloud part. Really thanks a lot, bro. Moving forward, after deployment, see, as of now we have sorry, we have deployed our project into the user environment. And now what if, okay, व्हाट इफ ऐसा हुआ कि हमने चीज़ें डिलीवर कर दी अपने क्लाइंट को और उन्हें इन बिटवीन उन्हें कभी लगा कि इसमें ये फीचर एक्स्ट्रा ऐड होने चाहिए, ओके, या कुछ ऐसा बग आया या ऐसा कुछ ग्लिच आया कि उन्हें उसका जल्दी से मेंटेन करना है, उन चीज़ों को ठीक करना है, उन डिफेक्ट को या बग्स को, तो क्या होगा, राइट? तो उसके लिए हम SDLC के नेक्स्ट फेज में आते हैं, वो है मेंटेनेंस। इन मेंटेनेंस हम ये इंश्योर करते हैं कि इन फ्यूचर हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोडक्ट में, हमारे सॉफ्टवेयर में जो कुछ भी बग्स आएंगे, ओके, जो कुछ भी डिफेक्ट आएंगे, वो सारे चीज़ों को हम अच्छे से ये डिटेक्ट करें और साथ ही साथ रिमूव करें, ओके। इन मेंटेनेंस फेज हम एक्स्ट्रा एडिशन जो करना होता है, जो कि अपग्रेडेशन होता है, हम जो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता है तो आपने कोई सॉफ्टवेयर होता है तो आपने देखा होगा कई बार हर सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते रहते हैं, राइट? तो उन अपडेट्स में क्या होता है, उन अपडेट्स में वो प्रीवियस बग्स तो इनकाउंटर हुए थे, जो यूजर्स ने कहे या जो उन्होंने भी उनके बैकएंड टीम ने देखा, उन लोगों ने उस बग्स को फिक्स करा, राइट? तो मेंटेनेंस फेज जो रहता है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। जब तक हमारा प्रोजेक्ट, हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में है तब तक मेंटेनेंस फेज चल रहा होता है, राइट? क्योंकि वो जो बग्स है फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, राइट? तो हमें हमेशा उन चीज़ों को मेंटेन करते रहना होता है, जो भी नए नए बग्स आते जाएंगे, ओके। साथ ही साथ गेम का भी अगर एग्जांपल ले तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि गेम में बाद में ऐड किए जाते हैं, या कोई सॉफ्टवेयर है उसमें भी कोई फीचर है, जैसे कि मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम कॉल करने का फीचर उसमें उपलब्ध है, ओके। इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि उसमें वीडियो कॉलिंग का भी फीचर आ जाए, तो ये एक अपग्रेडेशन होगा, राइट? दिस इज नॉट अ बग, इट इज अ सिंपल इन्हांसमेंट, राइट? ये एक अपग्रेडेशन है। तो इन चीज़ों को भी हम मेंटेनेंस में इंक्लूड करते हैं, यानी कि मेंटेनेंस में हम बग फिक्सिंग, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, ओके गाइज। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स दैट all the phases that we do in our SDLC. Okay guys, is it clear till now that this is the final phase of SDLC? So can you guys please respond that did you guys understood what are the stages and what are the phases of SDLC? ओके, जब तक सब रिस्पॉन्स करते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, तो सबने सोचा कि टेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स हैं, करेक्ट, एंड डिप्लॉयमेंट के लिए भी कुछ प्लेसेस हैं जहां हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो किसी ने ये सोचा जो हम प्लानिंग करते हैं या जो भी जैसे डिसाइड करते हैं, क्या उसके लिए भी कोई प्लेस होगा कि हम जहाँ राइट डाउन कर सकें? ऐसा तो नहीं कि नोट पैड में जाके लिख लिया कि आज अच्छा हमें ये चीज़ें करनी है, दैट्स इट। किसी ने वो चीज़ पूछा ही नहीं कि प्लानिंग के लिए कोई टूल है क्या जहां हम लिख सकते हैं, जहां हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं? ट्रेलो यूज करते हैं। awesome response. एंड और कोई यूज कर रहा हो राइट नाउ या जिसे पता हो कुछ इनपुट वांट टू गिव? मैं यूज करता हूँ, ट्रेलो यूज करता हूँ, बेटर भी है, ऊपर से अच्छा, कमिंग मॉडल इसमें यूज पर परफेक्टली काम करता है। इसमें एक्चुअली उसमें क्या होता है, पूरा टीम उसमें काम कर सकता है कि अगर हम उसमें एक्सेस दे सकते हैं पूरी टीम को, हाँ, तो
पता चलता है कि प्रोजेक्ट का ओवरफ्लो क्या है, तो वहां से वो बेटर समझ में आता है। और वहां पे 3 अगर आप बोर्ड बना सकते हो जैसे ना कि क्या हमने सोचा, प्लानिंग फेज में क्या क्या है, और इन प्रोग्रेस हम और कंप्लीटेड क्या हुआ है, तो उसमें बेटर समझ में आता है कि हाँ ये हो रहा है, इतना प्रोग्रेस हुआ है। और नॉर्मली अभी जो कंपनी का, जो इंडस्ट्री का ये स्ट्रेटेजी होता है कि एजाइल कमिंग वो चलते हैं, बट वो लोग अपना खुद का टिकटिंग सिस्टम बनाते हैं। बिकॉज आप इंडस्ट्री में हो तो टिकट इज द फॉर्म ऑफ इश्यूज बाय द क्लाइंट्स। करेक्ट। नॉर्मली वो लोग टिकट सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है उस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए अप्लाई करने के लिए। करेक्ट। ये कुछ ज्यादा हो गया, ये इतना नहीं जाना है। No, no, that are really valuable information, bro. Because in Trello, a collaborative team effort is a must. So don't worry about all the things. All the things that you are telling is absolutely correct, bro. We really appreciate it, guy, bro. या सो जैसे सोहम ने बताया कि हम ऐसे कुछ एप्लीकेशंस यूज करते हैं। सिमिलरली राइट नाउ अगर हमने क्यू टेस्ट, ठीक है, जहाँ जो भी स्पेशली अगर मैं टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो जो भी एविडेंसेस हैं जो लिया जाता है वो क्यू टेस्ट में अपलोड किया जाता है। जहाँ कोई भी, या जब यूएटी परफॉर्म किया जाता है जो आशुतोष ने बताया, या किसी को भी देखना हो कि हाँ राइटली टेस्टेड है कि नहीं, बिकॉज आग बंद करके भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि या दिस इज टेस्टेड करेक्टली। तो कुछ एविडेंसेस जो प्रूफ है कि एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, उसके टेस्ट एविडेंसेस वहां अपलोड किए जाते हैं। एंड जीरा ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो आप सेट में डिवाइड कर सकते हो। दिस इज अ बिगर सेट, सपोज देयर इज अ बिगर प्रोजेक्ट यू वांट टू डेवलप, यू कैन डिवाइड दैट बिगर प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट। दैट स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड एज स्टोरी। इन दैट स्टोरी यू मस्ट गिव द डिस्क्रिप्शन, लाइक सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट के जैसे यू मस्ट गिव द डिस्क्रिप्शन। एंड ये प्लानिंग के ड्यूरेशन ही होता है, आफ्टर बजटिंग एंड ऑल दैट स्टफ इट हैपन, जहाँ पे आप लिखते हैं कि क्या क्या वी नीडेड, एंड टेस्टर के लिए भी लिखा जाता है व्हाट यू नीड टू टेस्ट बेसिकली, ठीक है। दैट हैपेंस इन जीरा राइट नाउ विच वी आर यूजिंग। ओके, सो प्लानिंग के लिए आपको पता चला क्या यूज कर सकते हैं टेस्टिंग के लिए एंड डिप्लॉयमेंट के लिए। स्टिल इफ एनीबडी हैज डाउट दे कैन आस्क। If not, we will move on. Tick, 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 tick. You have to be faster. Type yes or no. And thank you, Soham, for participating. I must say, you're a great guy. And you are having very beautiful future. Like Pragya, sorry for interrupting, but I'm much curious about Soham's background. Like Soham, can you please give your little bit introduction of? Yeah, Subham. I'm Soham Pradhan. Actually, I am not not working in industry, but I have intensive experience. That's why the industry is how are using it. Actually, I'm in 4th year, and this is my 4th year. So I'm in place in 3 companies, so it is starting our next year. So then we can start my corporate life. But till now, I have been doing internship in 3 companies. So what are the processes there? That's why I'm just relating these things or not. That's really, really great, bro. And all the best for your like corporate life. Thanks a lot. I enjoy that life. Thanks. Yeah, man, definitely means you will. You have explored much more things before going in corporate industry, bro. So keep it up and all the best. So without wasting much time, we should move on. Modules used in. I think Pragya, your voice is breaking. Just give me 1 minute. Yeah, it is fine now. Okay. Am I audible now? Yeah. Yeah, you're audible. Okay, just give me 1 minute, or you can give only 5 seconds. Just count 1, 2, 3, 4, 5. Okay, that. Till that, I want to mention that जिन लोगों ने अभी तक attendance form fill up नहीं किया है, please fill कर दे, so that we will
reach up to you and we'll give some जो भी फ्यूचर में जो भी ऐसे इवेंट्स होंगे तो हम आपको उनके बारे में बता सके. So please feel free to fill that form. And don't worry, we will not forward any of you detail to anyone. Okay, now it's good. Yeah, it is good. Okay, thank you. So yeah, so there are 4. Basically, we here represent only 4 models, and there are so many other models also. As Soham earlier says a lot about agile, and who haven't heard about this agile methodology, you will gonna know about this, because in this session we are basically focused on agile methodology, because right now this is a leading model which is used in SDLC as a SDLC model in this bigger organization. Okay. So yeah, Ashutosh, you want to say about waterfall iterative and some, you can brief it out some of this model? Yeah. So guys, And also I want to say that you must जो चीज आपने मुझे बताई थी, if you remember about NASA thing, you can please give that beautiful idea to our audience. yeah, sure. You guys like आपको क्यूरियस हो गए होंगे कि लाइक ये नासा वाला बात क्या बताया था मैंने, राइट? सो नासा वाला बात ये था कि लाइक जब नासा अपने मरकरी मिशन पे काम कर रहे थे, जब वो इस मिशन पे काम कर रहे थे कि मरकरी पे जब उन्हें अपने ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट को भेजना था, तो जब उस मिशन पे काम कर रहे थे ना, तो ये काफ़ी पहले का बात है, ठीक है? तो उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में जो ये सारे मॉडल्स थे, उस टाइम एजाइल डेवलप मॉडल्स नहीं थे, ओके? तो जब नासा की टीम जब इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कि उन्हें मरकरी पे अपने मिशन भेजने हैं, तो क्या हुआ ना कि लाइक ऑफ कोर्स लाइक वो एक डायनेमिक चीज़ें हैं, लाइक मरकरी का जो इन्वायरमेंट है, नॉट इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर जो है वो डायनामिक है, राइट? इट इज़ नॉट लाइक अवर अर्थ इन्वायरमेंट, लाइक सो क्या हुआ कि लाइक जब उन्हें अपना मिशन प्लान आउट करना था, तो जो रिक्वायरमेंट थे वो सडनली चेंज हो गए, ओके? लाइक उन्हें रिक्वायर रहा होगा पहले एक हैवी व्हीकल का, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है मरकरी का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अर्थ से कम है ड्यू टू द स्मॉलर साइज, ओके? तो ये सारे जो रिक्वायरमेंट थे, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ रिक्वायरमेंट, तो उनके जो रिक्वायरमेंट थे वो इन बिटवीन द प्रोजेक्ट चेंज हो गया। तो उस टाइम नासा की टीम ने एक नया मेथोडोलॉजी मॉडल डेवलप करा जिसे हम आइटरेटिव मॉडल कहते हैं, ठीक है? उन्होंने लाइक उनका जो काम था उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया और अलग अलग टीम में उस काम को डिवाइड कर दिया, ताकि हर एक टीम अपने अपने हिस्से का काम परफेक्टली और इफिशिएंटली कंप्लीट कर पाए, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स, ओके, दीज आर द स्मॉल लाइक इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमन नेचर डैट जिसके वजह से धीरे 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 ढेर सारे मॉडल्स आते चले गए। एज ऑफ नाउ ऑन अ स्क्रीन यू गाइज आर सीइंग दैट देयर आर वाटरफॉल, आइटरेटिव, एजाइल एंड डेवऑप मॉडल। देयर आर other model also. There is one model named Big Bang model, and it is one of my favorite model, so I will not go that deep. So without wasting any further time, let us go deep into the agile methodology, okay? So you guys ready? No. So before we start, अभी तक हमने जितना ही पढ़ाया, एक क्वेश्चन बस पूछना है कि लेकिन इसमें जवाब मुझे सबका चाहिए, ऐसा नहीं है कि ओनली वन पर्सन इज गिविंग आंसर। सो अनन्या, यू हैव टू गिव आंसर, कविता यू टू, एंड प्लीज लड़कियों का पार्टिसिपेशन भी इक्वल रहना चाहिए हर जगह, ओके? सो टोटल कितने फेजेस होते हैं इन एसडीएलसी मॉडल? सॉरी, इन एसडीएलसी फेजेस कितने फेजेस होते हैं? लाइक 5 4 3 2 1, हाउ मेनी फेजेस? I'm not asking what are the phases, how many phases? Unmute and say 4 5 6, at least you can do this thing. 7. Okay, anybody else want to answer? Thank you, Ananya. I think her name is Nayana. Yeah, thank you for correcting, Premraj. Yes, ma'am. Yeah, I'm really sorry, really sorry. Okay.
यशश्री, तापस, आयुध्या, तापस, Yes, I'm here. कितने फेजेस होते हैं टोटल इन SDLC? गलत भी हुआ तो चलेगा, इट्स फाइन, जैसे आवाज सुननी है सबकी, है कि नहीं? एक जुनून आ जाता है जो सिखाने के लिए, राइट? यस। अरे गलत बोलो, Yeah. कोई बात नहीं। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो फिर मुझे नींद आने लगेगा। नहीं तो मैं ही गलत जवाब बोल देती हूँ। कोई गलत सही कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो। अविनाश, आप स्टार्टिंग से हैं, एक जवाब तो दे दीजिए। ओके मिथिलेश, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। कविता, यू वांट टू ऐड एनी पॉइंट, लाइक कितने होते हैं फेजेस? चलो, हमें जितने आंसर मिले, चलो, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओके, या वी कैन मूव ऑन with the agile methodology. So guys, Yep, continue. yeah, agile methodology. Okay, so let me first read this out. Agile software development is various approaches to software development under which requirements and solutions evolve through the collaborative effort of self-organizing and cross-functional teams. ओके, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहा है उसमें पूरे टीम का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक कोई काम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का काम नहीं होना चाहिए। सारे टीम का इक्वल पार्टिसिपेशन और नेसेसरी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओके, सारे के सारे एक वैल्यूएबल चीज में एफर्ट दे रहे होने चाहिए। ओके, एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड देयर कस्टमर/end users. It advocates adaptive planning, evolutionary development, early delivery, and continual improvement, and it encourages rapid and flexible response to change. Like, let me explain all these things. It advocates adaptive planning. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लाइक एजाइल मेथोडोलॉजी में हम ये इंश्योर करते हैं कि हम जब प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपना जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लाइक क्लाइंट ने हमें कहा कि अचानक से इन बिटवीन कि हमें ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो ऐड करना है, या ये फीचर है जो हमें रिमूव करना है, या ये एक फीचर है जो कि आपने ऐड करा है बट इसमें ये चेंजेस करना है, ठीक है। तो एक एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करने वाला ऑर्गेनाइजेशन को इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, फुल्ली फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि जो कुछ भी चेंजेस इन बिटवीन प्रोजेक्ट में आए, ठीक है, वो डायरेक्टली उस पर उसी टाइम काम कर सके। ये नहीं कि उसे हमने बैकलॉग में डाल दिया कि हम कभी और करेंगे, ठीक है। जो चेंजेस आए, लाइक एटलीस्ट टीम रिस्पॉन्सिव होने चाहिए कि जो भी चेंजेस हमारे इन बिटवीन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आए उस पर वर्क कर सके, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज एवोल्यूशनरी एडेप्टिव प्लानिंग, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, अर्ली डिलीवरी। अर्ली डिलीवरी से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे क्लाइंट ने, हमारे जो स्टेक होल्डर है, उन्होंने लाइक हमसे प्रोजेक्ट डिलीवर करने कहा, बिल्ड करने कहा, तो हम चाहेंगे कि लाइक वो फ्यूचर में भी हमारे पास ही आए। लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट डेवलप करने कहा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है वो चाहेगा कि नेक्स्ट टाइम वो कंपनी फिर हमारे पास अपना किसी प्रोजेक्ट को लेके आए, राइट। सो ये इंश्योर करने के लिए हमें काम काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्ट अच्छे से बिल्ड करना होगा, टाइमली डिलीवर करना होगा, और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि लाइक टाइम से थोड़ा पहले डिलीवर करें ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम रहे कुछ अनप्लान चीज़ों को डिस्कस करने का या उस पर थोड़ा ध्यान देने का। ओके, मोर ओवर, सॉरी गाइस, इन एजाइल मेथोडोलॉजी और हम क्या इंश्योर करते हैं कि जब भी मीटिंग हो, ठीक है, तो और वो मीटिंग लाइक टीम के बीच या क्लाइंट के बीच किसी के भी साथ हो, तो सबका एक इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक 2-3 लोग बोल रहे हैं बाकी लोग शांत बैठे हैं। एजाइल मेथोडोलॉजी में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का प्रॉपर कम्युनिकेशन और प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए, ठीक है।
फिर और हम एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या इंश्योर करते हैं कि हम जब भी क्लाइंट को लाइक जैसा कि ये एक लाइक सॉरी टू से मुझे नाम नहीं याद, बट तुमने कहा था लाइक कि हम चेक पॉइंट्स तैयार करते हैं, राइट? तो ये चेक पॉइंट एजाइल मेथोडोलॉजी में इस तरीके से काम करते हैं कि हमारा जब बीच बीच में इन बिटवीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हमारा क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन हो, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि आपको लाइक आपने किसी को काम करने दिया, और जब आप लाइक बीच बीच में उसके साथ जब प्लानिंग या मीटिंग कर रहे हो तो उसने आपको लाइक डॉक्यूमेंट्स और इन पेपर दिखाया कि हाँ ये काम हो रखा है, और एक दूसरा इंसान है लाइक एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको दिखा रहा है कि सीधे सॉफ्टवेयर दिखा रहा है कि या आपने ये रिक्वायरमेंट का मांग करा था, हमने ये रिक्वायरमेंट अभी तक ऐड करा है, ठीक है? तो आपको ज़्यादा सही कौन सा लगेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको पेपर पे दिखा रहा है कि अभी तक ये काम हुआ है, और या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको सीधे सॉफ्टवेयर में दिखाए कि ये काम हुआ है? लाइक इट इज़ लाइक प्रिटी ऑब्वियस कि सभी को वही अच्छा लगेगा कि जो डायरेक्टली हमारा वर्किंग सॉफ्टवेयर पे दिखा रहा हो कि क्या क्या काम हुआ है। तो दिस इज़ द मेन मोटो ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी कि हम वर्किंग सॉफ्टवेयर पे काम करें, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स बाद में बनते रहेंगे, ठीक है, लेकिन पहले वर्किंग सॉफ्टवेयर तैयार होना चाहिए, ठीक है? और रहा फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस, ये बात मैंने पहले ही कहा कि इन बिटवीन कभी भी रिक्वायरमेंट चेंज हो, ठीक है, हमेशा हमें हमारे एजाइल टीम को रेडी रहना पड़ेगा कि वो रैपिड चेंजेस पे इजीली फोकस कर सके। ओके आशुतोष, या सो हमने अभी पढ़ा कि एजाइल डेवलप मॉडल क्या होता है, करेक्ट? सो जो एजाइल मॉडल होता है सोवम, सो आप बता सकते हो कि कौन सा बेसिकली उसके अंदर कौन सा ऐसा मेथोडोलॉजी है या यू कैन से फ्रेमवर्क यूज होता है नाउडेज? स्क्रम ही होता है ना उसके? यस, स्क्रम होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्क्रम एजाइल है, एजाइल स्क्रम है, जबकि ऐसा नहीं होता है। स्क्रम एजाइल का एक पार्ट है, ठीक है? एंड एजाइल के अंदर ऐसे बहुत सारे दूसरे भी फ्रेमवर्क्स हैं जो कि यूज होते हैं, लाइक कैनाबेना, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एंड ऑल भी अदर फ्रेमवर्क्स हैं, बट बेसिकली जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो स्क्रम है, ठीक है? तो अब हम उनके बारे में ना पढ़ते हुए हम स्क्रम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज के डेज में ज्यादा यूज हो रहा है इन इंडस्ट्री, ठीक है? तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, कुछ स्क्रम मास्टर्स हैं, प्रोडक्ट ओनर है, डेवलपमेंट टीम है और टेस्टर टीम भी होनी चाहिए थी, बट ये पिक्चर वी वांट टू क्रेडिट रिलेवेंट, हमने वहां से पिक्चर लिया है टू डिस्क्राइब यू ऑल गाइस, ओके? सो जैसे सोहम ने पहले भी कुछ बताया था, तो जिनको नहीं आइडिया है दे विल अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स आफ्टर दिस, ओके? सो स्प्रिंट में जैसे सपोज हमने वी टेक एन एग्जांपल कि हम चाहते हैं कि वी वांट टू डेवलप द होम पेज ऑफ जोमैटो, ठीक है? आई एम अ फूडी पर्सन, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ जोमैटो। तो हमें टारगेट है जोमैटो का पहला पेज हमें बनाना है, ठीक है? डिजाइन करना है कि कहाँ फूड आना चाहिए, कहाँ वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट्स के नेम, ये सारी चीजें आनी चाहिए, ये हमने डिसाइड किया। तो जो ठीक है हमने डिसाइड किया, बेसिकली हम मतलब जैसे कि आप में से मान लेते सोहम डेवलपर है, कविता हमारी टेस्टर है, यशस्वी वो भी हमारी डेवलपर है, एंड हमारे क्लाइंट हो गए प्रेमराज, ठीक है? जो चाहते हैं कि हम ये चीज डेवलप करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम डेवलप करें, तो अब हम सब टीम है, राइट? से यस, ठीक है? एंड यू कैन से कि मैं आपकी स्क्रम मास्टर हूँ, ठीक है? तो मैंने आपको आगे बताया है कि दिस इज अ स्ट्रैटेजी, हमारे क्लाइंट ने हमें बोला है कि ये चीज हमें बनाना है, करेक्ट? तो डेवलपर की टीम डेवलप करना स्टार्ट करेगी, एंड ये मेथोडोलॉजी इसलिए फेमस है। पहले क्या होता था कि डेवलपर के काम खत्म होने के बाद टेस्टर टेस्टिंग स्टार्ट करता था, बट अब क्या है, डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टर टेस्टिंग स्टार्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन प्लान आउट करना शुरू कर सकता है। अब उसका वेट नहीं करना कि जब डेवलपमेंट स्पेशली कंप्लीट हो, देन वी विल स्टार्ट द टेस्टिंग, प्लानिंग करना एंड स्ट्रैटेजी बनाना नहीं, आप साथ में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही वो टेस्टिंग को मिले तो टेस्टर टेस्ट करना शुरू कर दे, ठीक है? तो ये हमने ड्यूरिंग ए होल स्प्रिंट ये चीज डिसाइड होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो इतने सारे वर्ड लिखे हैं, स्प्रिंट स्प्रिंट स्प्रिंट, तो पता होना चाहिए कि स्प्रिंट क्या है,
ठीक है। स्प्रिंट क्या करता है कि जो हम एक सेट ऑफ जो अभी हमने काम लिया, दैट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क वी हैव टेकन टू कंप्लीट दिस इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट, और ठीक है, तो एक टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि स्प्रिंट और एक हफ्ते का हम बेसिकली लेते हैं कि हमें एक हफ्ते का टारगेट लिया है एंड हमें इस चीज को कंप्लीट करना है, इस डिजाइनिंग को या फिर डेटाबेस को मेंटेन करना हुआ, ठीक है। तो ये हमने टास्क लिया इन दैट स्प्रिंट। तो स्प्रिंट क्या होता है, जो भी कोई छोटा सेट ऑफ amount of work which is decided to complete in the particular time frame, that is a sprint, ठीक है। तो स्प्रिंट प्लानिंग में जैसे मैंने पहले बताया कि हम क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस में राइट नाउ यू कैन इमेजिन देयर इज अ नोटपैड जहाँ पे हमने लिखा है कि जोमैटो नीड दिस पेज टू बी डिजाइन लाइक दिस, ही नीड्स that restaurant came, okay, and basically bestseller restaurant should come in the first page। तो ये हमने स्प्रिंट प्लानिंग में डिसाइड किया। आफ्टर डिसाइडिंग सो हमको कुछ काम दिया गया कि आप ये डेवलप करो, यशस्वी को दिया गया, मिथिलेश को दिया गया, तापस को भी दिया गया, ये सब हमारे डेवलपर्स हैं, आप सबको कुछ ना कुछ काम दिया गया कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज बेसिकली ये है कि आपको डेली स्क्रम, जैसे हम स्क्रम कॉल कहते हैं, यू हैव टू अटेंड दैट स्क्रम कॉल एंड दैट इज अबाउट 15 मिनट्स, ठीक है, जहां यू हैव टू रिपोर्ट योरसेल्फ कि आज आपने कितना काम किया है, कितना काम करने वाले हो और व्हाट इज योर प्लान स्पेशली, ठीक है। एंड ये मीटिंग हेल्ड होगी स्क्रम मास्टर के लिए। तो राइट नाउ स्क्रम मास्टर आपका कौन है? तापस आप बताइए। अभी राइट नाउ हमने एग्जांपल दिया था, सो अभी राइट नाउ अगर आप हमारे डेवलपर है तो आपका स्क्रम मास्टर कौन है? मैं बता सकता हूँ कि स्क्रम मास्टर जो मतलब आपने बोला टीम मीटिंग्स, इसी नॉर्मली इन माय केस वो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन केस में वो टीम लीडर ही होता है। जैसे कि पर्टिकुलर Yes. टीम लीडर जो है 5-5 लोग को कोलैबोरेशन की टीम बनता है, तो स्क्रम उसमें से एक असाइन होता है कि जो टीम लीडर जो होता है एज एक्सपीरियंस मोर देन 5 years एक्सपीरियंस, सो दैट विल यस यस, आप कंटिन्यू, कैन कंटिन्यू। या और आपने जो बोला था टेस्टिंग का, टेस्टिंग जो होता है वो नॉर्मली सबसे इजी काम होता है। वो क्या करता है कि स्क्रिप्ट रिटर्न करता है कि ये आज ये करने से ये होगा। जैसे टेस्ट केसेस अगर हम हैकर रैंक में जाते कोई कोडिंग करते राइट, तो उसमें कि कुछ हमने कोड किया उसका कोई टेस्ट केस होता है, तो नॉर्मली सेम केस होता है जो हम कोड लिख रहे हैं वो डेवलप हो गया, और जो टेस्टिंग जो टेस्ट केसेस हुआ वो क्या होता है, वो टेस्टिंग ही बनाता है। तो ठीक है, ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं ये पूछ रही थी राइट नाउ, जैसे मैं आपकी स्क्रम मास्टर, सिंपल सा आंसर था कि मैं आपकी स्क्रम मास्टर, एनीवेज, तो ये एग्जांपल लिया गया था। तो यस, जो स्क्रम मास्टर हर कोई नहीं बन सकता है, 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो टेक्निकल लीड होते हैं, और स्पेशली स्क्रम मास्टर के नाम से ये है कि वो मास्टर है। तो मास्टर तभी बन सकता है कोई जिसके पास सारी नॉलेज हो, सबको हैंडल करने का तरीका आता हो। सारे टेक्निकल लीडर्स स्क्रम मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ सारे स्क्रम मास्टर टेक्निकल लीडर्स होते हैं। सो जैसे सो हमने कहा, ठीक है, आफ्टर क्या कहते हैं, जो स्क्रम मास्टर है वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं एंड स्क्रम मास्टर को ही लिया जाता है ताकि वो डेवलपर की टीम को भी समझा सके कि आपको क्या काम करना है, या उनको पहले से ही पता रहता है कि उनके पास, क्योंकि उनको काम असाइन कर दिया जाता है ड्यूरिंग दिस डेली स्क्रम मीटिंग, ठीक है, डिसाइड या प्लानिंग के, स्पेशली ड्यूरिंग प्लानिंग, नॉट इन डेली स्क्रम मीट कॉल्स। तो जो स्प्रिंट प्लानिंग होता है, जो कि सबसे पहला वाला है, ठीक है, उसी दौरान जो स्क्रम मास्टर होता है वो असाइन कर देते हैं कि आपको डेवलपर को कौन सा काम करना है, टेस्टर को कौन सा काम करना है। यस, यूजर टेस्टर का काम इजी होता है, बट अगर टेस्टर ने डिफेक्ट्स नहीं निकाला तो उसकी बैंड बच जाएगी। सो टेस्टर को भी डिफेक्ट निकालना पड़ता है, मतलब उसको सिर्फ इस नजरिए से नहीं देख सकता कि डेवलपर ने बनाया है तो सही ही बना होगा, नो, उसको बग के नजरिए से देखना पड़ेगा एंड ही हैव टू फाइंड बग्स। एंड ऐसा नहीं है कि बग्स नहीं निकलते, thousands of bugs निकलते हैं जब भी डेवलपर करता है। टेस्टर को डेवलपर से दुश्मनी होना चाहिए, सो वो दुश्मनी पूरा उसके काम में दिखा सके कि हाँ भाई तूने ये काम किया है, अभी इसमें ये बग है, तू इसको सॉल्व करके दे दे। यस यस यस, कट्टर दुश्मन यू कैन से, ठीक है। एंड देन डेली स्क्रम यू हैव टू रिपोर्ट एवरीवन कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये टेस्ट किया, आज मैंने ये डिजाइन किया, ठीक है। आफ्टर दिस थिंग देयर इज अ स्प्रिंट रिव्यू। तो एक हफ्ता खत्म हो गया और हर दिन 15-15 मिनट की मीटिंग हो गई, ठीक है।
अब 15 मिनट की मीटिंग के बाद अगर सोहम को कोई काम दिया गया है और उसने उस चीज को कंप्लीट नहीं किया है, सपोज सोहम को 10 काम दिए गए थे, तापस को 15 काम दिए गए थे एंड कविता को 5 काम दिए थे, तो उन्होंने समहाउ 50% वर्क कंप्लीट कर दिया है क्योंकि 1 हफ्ते का ड्यूरेशन है, राइट? तो उन्होंने ये काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन कुछ काम रह गए, ठीक है? तो वो हम नेक्स्ट स्प्रिंट में ले जाएंगे, ठीक है? स्प्रिंट रिव्यू में ये होता है, पूछेंगे तो स्क्रम मास्टर दे विल आस्क यू कि हाउ मच यू हैव वर्क डन एंड विच स्टोरी विच इज रिटन इन योर नोटपैड, या फिर आपका जो भी टास्क है विच इज गिवन टू यू, क्या आप चाहते हैं कि हम इसको नेक्स्ट स्प्रिंट में लेकर जाएं, या फिर आपसे ही पूछेंगे व्हाट इज द स्टेटस। Hello guys, am I audible? Yes, Ashutosh, you're audible. I think. Yeah, no problem. So guys, as अभी हम बातें कर रहे थे कि लाइक स्प्रिंट प्लानिंग क्या है, डेली स्क्रम क्या है। अभी तक आपको लाइक चीज़ें समझ में आई कि डेली स्क्रम में हम जब अटेंड करते हैं तो हमें वो 15 मिनट्स के लिए अटेंड करना होता है ताकि हम चीज़ें प्लान आउट कर सकें कि लाइक हमने क्या क्या काम करा है या क्या क्या काम करना है, ठीक है? इसको लाइक फॉरवर्ड बढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा, जो कि मैं सोचा कि लाइक एंड में बोलूँगा, बट अभी बोलता हूँ, ठीक है? कि लाइक एज समवन टोल्ड दैट कि टेस्टर को काफ़ी कम काम करना रहता है एंड ऑल दोज थिंग्स। बाय दैट टाइम प्रेमराज, कैन यू लाइक check in the background that what is the issue? Sure. Yeah, sorry guys. Yeah, welcome back Pragya. Yeah, thank you. So in this, with the whole process done, yeah, Ashutosh, if you want to add some point, you can continue sure. from the stakeholder. Stakeholders, do you guys okay, so leave. I will just directly tell who are the stakeholders. Stakeholders क्या होते हैं पता है? लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग जो कि हमारे प्रोजेक्ट से या हमारे बिजनेस से डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे होते हैं। स्टेक होल्डर हमारा लाइक मैनेजर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो लीड्स हैं, जो कि सीईओ हो या जो इतने लाइक बड़े बड़े लोग रहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग, या इन्वेस्टर जिन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है, ये सारे लोग, गवर्नमेंट पीपल जिनको लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंट्री ग्रोथ में जीडीपी मिल रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज पीपल आर स्टेक होल्डर्स। इन सिंपल टर्म्स, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिन्हें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम से डायरेक्टली अफेक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है? हमारे स्टेक होल्डर्स हमें लाइक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये सारे काम स्टेक होल्डर्स के होते हैं, ठीक है? Now, like this is the what all the things that we have to tell you guys about the Scrum. Apart from this, मैं कुछ कह रहा था, हाँ, कि लाइक टेस्टर का रोल लाइक टेस्टर का काम थोड़ा कम होता है, तो लाइक एज लाइक कुछ लोग यहाँ 4th ईयर के हैं। सॉरी टू इंटरप्ट आशुतोष। सो हम क्या कहते हैं, समय से बंधे हुए हैं तो हमारे पास बहुत वक्त कम है। ऐसा नहीं है कि तो ये सेशन लगभग एंड हो चुका है। सो थैंक यू which we are going to provide you कि SDLC क्या है, there's a short summary for this, ताकि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जाने जब एंट्री करें you should know कि कैसा सिस्टम चल रहा है, क्या प्रोसीजर्स हैं। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. It means a lot for us. Yeah, it means a lot to all of us, bro. Like, just wait for 1 minute if you want to, and we will be very happy. Just wait for 1 minute, and I will ask Prem Raj to tell about Ouroboros. Yeah. So before that, Prem Raj, thanks a lot to all of you guys, and like I will like stop my presentation now. You can carry on, Prem Raj. Yeah, thank you Ashutosh and Pragya for the lovely session and informative session. Yeah, Omkar, can you please take over the session?
Hello, Omkar. Yeah, sure. Okay. So, am I audible here? Yeah, you are audible. Yeah. So, I would first I'm thankful to Ashutosh and Pragya. That was a wonderful session. So, it was about SDLC. It was awesome. I hope everyone enjoyed it. I'll give you a bit information about what we are doing here, why we are gathered here. Okay, so we are Ouroboros. You might have heard this a lot of times. So we are Ouroboros. This course or this sessions are leading you all to a specific course. The course will have certain points which will be in favor of you as in students, like second year, third year, or fourth year students belonging to computer science or computer engineering or other computer related branches. We have job oriented trainings. We have hands on project experiences. We'll have a lot of projects that will mimic live projects. Also, we have live projects, but those are for some specific students, like for last year students or some other people, but also for the initial who are really new to the industry or new to the college ecosystem, like say second year or first year students. For those, we will have projects which will mimic live projects. That will be a really good hands-on experience for you guys. All the mentors you'll get are either from MNCs or have pursued multiple internships or are currently belonging to the industry. So you will get industry leading instructors, mentors. A very important thing here to notice is that हम कोई जादू नहीं कर रहे आप like आपके लिए कि हम कुछ कर देंगे and you will get placed. Okay, you have to put in a lot of efforts. You have to accept this that आप खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करोगे. बस चीज ये है कि आपकी मेहनत किसी गलत डायरेक्शन में ना चली जाए. लाइक you should not start multiple things or go in some wrong directions. Here's where mentors and instructors ये सब आपको मदद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटर्स है ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम करता है और ये सब उस फेजेस से गए हुए हैं. इनकी सारी मिस्टेक्स, इनके सारे लाइक पॉजिटिव थिंग्स जो जो इन्होंने फेस किया, इन्होंने एक्सपीरियंस किया, इनका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत काम आएगा. सो दैट्स वेयर दीज मेंटर्स कम इन एंड दे विल हेल्प यू. नो डाउट आप बहुत मेहनत करोगे, दैट्स फॉर श्योर, बट विल मेक श्योर दैट आपको जो गाइडेंस चाहिए, जो डायरेक्शन चाहिए, दैट डायरेक्शन विल बी गिवन बाय द मेंटर्स. Next important point is like will also help you फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग. कैसे एंटर करता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे कैसे करता है, everything about competitive programming. And the final thing is we have a community where you can ask doubt 24/7 and people will answer your doubts, no matter what. So you can ask your doubts on our social media platforms. There are multiple platforms. We have our Discord servers where if somebody don't know about Discord is a platform where you can come and you can chat, you can have group meetings, you can have calls, everything. Where it is a community platform that will really help you. So these are some important points. What are the perks if you join this? If you join the Ouroboros community, you'll have welcome gifts. You'll have rewarding challenges every time. You'll be overwhelmed with the challenges, and you'll be really happy to solve all those. You will get many live projects. There will be project development platform. You can discuss with your mentors and other people's, other colleagues, other friends. So that will be really helpful for you. You can ask in your doubts, not only doubts regarding to the projects. I'm saying any kind of doubt which you have about your career, about anything which will lead you towards your job or towards your dream company, that will be helpful. That will be fulfilled here. So any doubts, all are welcome. We have lifetime mentorship supports, so our mentors will never say no. They'll ask for some time, as you know, these are industry professionals. They'll be really busy, but they'll ask for some time, but they'll surely answer. So believe this. After this, we have like awards for the top performance. So we have challenges, as I told before. So whoever are the top performers will get many awards or kind of gifts or something that will inspire you again for the next challenge. That is really helpful. And the final thing is we have placement support as well. We
I'll let you know in the further side what we have for the placement support. We will be really happy for listening that. Uh, so the career to the specific course we are talking about. Just confirm, am I audible? Is my connection still good? Yes, My sir, screen you is are visible? audible. Yeah, Yes, good. sir. Thank you. Thank you. So the curriculum we are talking about here, it will be a rigorous technical curriculum which will consist of a project, which will consist of a lot of things here. Not only about the technical, also about your behavioral aspects, about your communication and other things, which will help you to crack not only one but multiple job offers or internships for the earlier students like second year, third year students, but for also for the fourth year, we are talking about job offers. So it will be a rigorous training wherein you have to put a lot of efforts. We will put 1,000%. We expect you to put your 100% here. So next point is will guide on like latest technology because the mentors you're getting here are really widespread with the knowledge with multiple technologies with various latest cutting edge technologies they're working upon. One thing for sure is like if I roughly divide the curriculum, 40% is about teaching. That will be very much like a coaching, but the 60% is customized like for mentors. So whatever you specifically as a student have your doubts or you want to pursue some career, that will be guided here, and that will be of more focused. That will be of more focused. So I guess you're getting the gist of what we are bringing up for you. So as I told you before, there are industry professionals who have gone through all this process and have a lot of knowledge now, not lot of mistakes they have done, they have overcome that, and they'll guide you. They'll have a lot of tips what to do, what not to do, how to boost your confidence, how to do other things, how to gain everything. So that will be really helpful for you. For all this in this curriculum, you'll have mock interviews. There will be a lot of interviews. After a point, you'll be like, let it be any company's interview. I'll be prepared. I'm prepared already. These many interviews are gonna be there for you. So just be there for the interviews. It's really gonna be enjoyable. It's really gonna be tough, but we will make sure that you enjoy the process. Last thing is we're gonna have certificate for the project, whatever you wanna do. There will be groups for the projects, or there might also be some individual project for some specific cases, but mostly there will be group projects. So you'll get the certificate of completing that project. You'll have that project in your resume. You'll have that hosted somewhere so that you can showcase it whenever you go for an interview. So that will be a really increased in credibility in your resume. That will put some weight on your resume. So we'll talk about the course itself here. So the course is named as Cornerstone Course Modules. We are talking about the course modules here, the Cornerstone course. In this course, you'll have all the modules from very basic to really advanced. So those who know things before, it will be a good refresher for them, and those who don't know anything, it will be a really good start for them. So we'll understand Linux here. We'll understand GitHub, Git, how to use it, what is it, what was the history, why it got introduced, and we'll also use it in our project. Like almost all of the things we'll learn in this modules. So just stay tuned. We have object-oriented programming, which will be way more helpful while building some projects. After that, we have data structures. This will be helpful for your competitive programming, for cracking interview questions, for other aspects wherein like you participate in some competitions, hackathons, or other things. We have 100 days code challenge wherein like continuously for 100 days, not leaving a single day, you code for certain problems. You get stuck in between. You have some doubts. We get it solved, and we complete the 100 days challenge. This is really helpful for the previous batch of students. So I make sure you start this from the day one. Will obviously help you to start it, but yeah.
Next part is computer architecture and operating system. This part explains you how a computer works in the background. What are the things? What it will be helpful for making efficient projects. It is really necessary in the industry also. So there are really good instructors, industry leading instructors teaching everything here. So there are some important parts coming up next. One of them is database. Every project needs a database, and you'll get to know database concepts in depth, and you'll also use it in the project. So that will be also helpful again. Computer networks is the next part. We'll learn networking here, various models, many more things. Next is software engineering. Like today's session, we learned about SDLC models, some introduction about the SDLC model. But in this model, you'll learn in much depth about everything about software engineering, about 2-tier, 3-tier architecture, about many more things here in the ninth model. This is the last portion, or the like end of the modules. By this, you'll have been done many interviews, mock interviews. You will have been done a lot of things before. So now, by the time you reach module 10, you'll be an expert already. Okay. So here's where you get introduced to the domains. So there are a lot of domains which are being used in the industry. So there are many students who are still confused, or in that phase we are really confused, right? So here you get introduced to various domains. Those are prominently used in the industry. So whenever you get introduced, you can choose something, choose a specific domain, and then work towards that. So this domain introduction helps you to understand many more domains like web or hybrid domains or data science, AI, cybersecurity testing, networking, cloud, and many more. Those are not mentioned here, but you'll get introduced to the domain so that you can choose something for yourself that you like. After this, we have interview preparation. Will conduct not only technical interviews but also behavioral interviews. So interview preparation module is really necessary. Will personally, like, mentors will talk to you, understand what problems you're facing in your interviews, what are the things you should improve upon. That's where mock interview comes in. Will also help you build your resume to the best we can, and everyone. Apart from this, we'll also have referral creation. So you understand, you get the gist, because we have a lot of people in industry. This will be a bit helpful, but we'll keep this as the last option. Generally, people will not need this. Okay, after going through all the modules, you'll be so strong that referral creation or referrals will not be needed that much. But if needed, we'll surely use them. Okay, you'll be so self-sufficient that you will crack multiple jobs after this rigorous training. And the last point is the projects. So we'll be doing projects on hybrid development or Django framework and other technologies also. So this will be a model wherein you'll build a project of yourself. Okay, it will be a group project, or for some cases it will be also individual projects. So this will be the last one. You'll get a certificate for the project. I hope everyone gets what the course will be. We'll surely share email with you wherein you'll get all the details again. So don't worry about this. We apart from the cornerstones, yeah. Does anyone has some doubts till now, or anything they wants to know more about this course? Can you send the links of LinkedIn and all? Yeah, sure. It will be in the chat. I will again post it. Actually, I left that you work, so fine. Sure. We'll again post it. Don't worry. I'll get all the links again. So any doubts till now? Anybody? Nope. Okay, cool. So apart from the main cornerstone course, we have individual modules also. We have certain
core programming languages, we have web development frameworks and basic technologies and databases. So you can also enroll in any of these specific modules. For details, you need to contact on the links given, or you'll also have some contact numbers, so you can contact directly for any doubts you have or any description you want about enrolling in either Cornerstone or specific courses. We have a box of surprise for all of you, that we assure, along with all these courses, we also assure you internship, okay, in industry, which will really help you to like put in some heavy credibility in your resume. This will, you will really stand out with the help of internship, and will also make sure that those internships are in really edge, like cutting edge technologies or the latest technologies, really good projects we'll be working upon. So don't wait anymore. You'll get the links in the chat. And also you can follow us everywhere, or we are almost on every social media platform, so that you'll be kept posted. So please do join. And if you have any doubts, you can just pop those doubts in the chat section here, or afterwards later on. If you have any doubts, you can chat, or you can send messages. You can also email. You'll get an email link. You'll get an email first of all for the registration link, and please don't reply to that email. That email is not monitored, but you'll get a email in the bottom of the registration page wherein you can post your doubts or anything you want to from us. Okay, anybody has any doubts till now, or anything you want to know more about this Ouroboros community? Omkar sir, can you please mention from where they can get certificates for all of these courses? Like, so we have some official certifications tied up. First of all, for the internships, understand this: your projects are the live projects that will be done in the internship. So internship certificates, you'll get it from the firms or the companies you'll be working upon. We are typed with multiple companies where you'll get live projects internship certificates. And also about some of the modules, you'll get certificates which are recognized by the industry. Those are not related to projects, but just completing about some examinations, you'll get certifications for those. these Thank you, certifications Pringas, from Google, IBM, Kaggle, HackerRank, and many more companies, like depending on the model which you are learning and working on it. Yes, we'll have those. That's what I mentioned right now, that those are not related to projects, but for completing some examinations, they'll get certifications about those things, those specific modules we're talking about. Okay, so you might have got the link till now.